by Basawe. This morning we are in Matthew chapter 10. आज की सुबह हम मत्ती उसके अध्याय 10 में को फिर से देखेंगे And I'll read our passage for today in English. और आज के इस भाग को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 to 15. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. These 12 Jesus sent out, instructing them, "Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without paying. Acquire no gold or silver or copper for your belts, no bag for your journey, or 2 tunics or sandals or a staff, for the laborer deserves his food. And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay there until you depart. As you enter the house, greet it, and if the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And if anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet when you leave that house or town. Truly, I say to you, it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town." May God bless His word to us. परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। We have been studying the amazing authority of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को के संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। He, with a word, cast out demons. उसने अपने शब्दों के द्वारा जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको निकाला। He healed diseases. उसने चंगाई प्रदान करी And he traveled everywhere preaching the good news of Jesus. और उसने हर जगह यात्रा की सुसमाचार को सुनाने के लिए। And in our previous section in chapter 9, we saw that his conclusion is that the people are like sheep that are beaten down. और पिछले अध्याय का हम जो निष्कर्ष है वो देखते हैं कि जो उसकी भेड़ें हैं वो मारे हुए लोग हैं। And they are oppressed. और वे सताए हुए हैं। And they are being manipulated. और उनका मन बदला जा रहा है। And it's a bad situation for the sheep. और बहुत ही बुरी परिस्थिति उन भेड़ों के लिए। And he said that pray to the Lord of the harvest. और वो कहता है कि जो harvest In verse 37 of chapter 9, he says, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. और पद 37 में वह कहता है कि पकवे खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। And Jesus said, pray for the laborers. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो सेवक है उनके लिए प्रार्थना करो। And we learned that it's very important to be a praying church. और हमने यह सीखा कि बहुत ही आवश्यक है एक प्रार्थनामय चर्च का होना, कलीसिया का होना। Because the Lord is the Lord of the harvest. क्योंकि जो परमेश्वर है वह उस खेत का परमेश्वर है। And he prepares his workers. और वह उसके सेवक को तैयार करता है। And he is the one who calls them out and sends them out. और यह वही है जो उनको बुलाता है और जो उनको भेजता भी है। But if we come to chapter 10, he just doesn't ask us to pray. पर यदि हम अध्याय 10 में आते हैं तो वह ना केवल हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है। The same great shepherd sends out the 12. वही जो महान चरवाहा है वह अपने चेलों को बाहर भेजता है। What we see is our great king, he has a commission
for these 12. और हम देखते हैं कि जो 12 चेले हैं, हमारे जो महान राजा है उसकी आज्ञा है उन 12 चेलों के लिए। And this commission is a gracious and yet a sobering commission. और यह जो आज्ञा है वह न केवल एक अनुग्रहकारी आज्ञा है लेकिन एक गंभीर आज्ञा भी है। It's gracious because he's sending these 12 out with the message of the kingdom. यह अनुग्रहकारी है क्योंकि वह उन चेलों को सुसमाचार के साथ बाहर भेज रहा है। Not to send people out of the kingdom, उस लोगों को राज्य से बाहर निकालने के लिए नहीं, but to invite them that the king has come into the kingdom. लेकिन लोगों को बुलाने के लिए कि उस राज्य में आओ क्योंकि वह राज्य निकट आ चुका है। But it's also a sobering commission, लेकिन यह एक गंभीर आज्ञा भी है, because the last verse in our section says it's bearable for, in verse 15, for Sodom and Gomorrah than for those who reject the Messiah's men. क्योंकि पद 15 में वह कहता है कि न्याय के दिन में उस नगर की दशा सदोम और अमोरा की देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। And so this great ministry of our Lord is both encouraging and at the same time it's very serious. और यह जो प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है वह ना केवल एक प्रोत्साहन देती है लेकिन हमें चेतावनी भी देती है। Now our first point under this commission is the amazing delegation of authority. आज का जो पहला मुद्दा है कि यह अद्भुत जो बुलाहट है जो वह देता है। To delegate means to give some responsibility and also authority to do that. बुलाहट देने का अर्थ है कि आपको एक जिम्मेदारी देना और उसका अधिकार भी देना कि आप वह करे उस कार्य को। And what we see in chapter 10 is Jesus calls his 12 to him. और अध्याय 10 में हम देखते हैं कि वह 12 चेलों को बुलाता है। Now there were many disciples, more than 12 around Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर अनेक चेले थे, 12 से ज़्यादा। The Bible mentions there were 70 ones sent out. बाइबल हमें कहती है कि 70 चेलों को एक बार भेजा गया था। But for the first time in the book of Matthew, he uses the word apostles in verse 2. लेकिन पहली बार इस मत्ती की पुस्तक में वह प्रेरित शब्द का प्रयोग करता है। And Jesus had a larger plan for the 70, but a very specific plan for the 12. और जो प्रभु यीशु मसीह का उन 70 लोगों के लिए भी एक योजना थी लेकिन इन प्रेरितों के लिए 12 लोगों के लिए एक विशेष योजना थी। And he had taken them close to him. और यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बनाए रखा, निकट बनाए रखा। What an amazing privilege they had to go everywhere Jesus went. और क्या ही अद्भुत उन चेलों का यह सौभाग्य है कि जहाँ कहीं यीशु मसीह जा रहे हैं वह उनके साथ वह जा रहे हैं। And no doubt in the recent past they had been traveling everywhere with him. और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो हर जगह यात्रा कर रहे हैं। And their task was to observe and to take in what is happening. और उनका जो कार्य था कि जो कुछ वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो उनको देखे और उसका पालन करे। And John says that no book would be sufficient to tell of all the great things Jesus did. और यूहन्ना कहता है कि कोई भी पुस्तकें पर्याप्त नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को लिखने के लिए। On the one hand, they had sacrificed their job and they were following Jesus full time. एक तरफ उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। But on the other hand, Jesus had the words of life. और उसकी दूसरी ओर यीशु मसीह के पास जीवन का वचन था। They could, after Jesus' parable, meet him in a house and say, "Tell us exactly what it means." प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के बाद वो उनके पास जाके पूछ सकते थे कि आप हमें बताओ कि इसका वास्तविक रूप में क्या अर्थ है। They could see his power over even nature and wonder, who is this man? वे प्रकृति के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देख सकते थे और ये आश्चर्य कर सकते थे कि यह जो व्यक्ति है वह कौन है। And today we should be amazed that Jesus gives his authority to these 12. और आज फिर हमें आश्चर्य करना की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को इन चेलों को देते हैं। It's one thing for you and me to just say to somebody, go and do this.
यह एक अलग बात है कि जब हम दूसरों को कहते हैं कि तुम जाओ और इस काम को करो। Go in the choke and stop all the traffic. तुम एक चौक में जाओ और जो ट्रैफिक लग गया है तुम उसे ठीक करो। We don't have that authority to give that authority. हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम यह अधिकार सामने वाले को दें। And one might even try to stop all the traffic. और कई बार लोग कोशिश करेंगे जो ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए, But the power is not there to stop that traffic. लेकिन उनके पास सामर्थ नहीं है उस ट्रैफिक को रोकने के लिए। But Jesus, being the Son of God, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, at this moment also, he's fully God and fully man. इस समय में भी वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर है और संपूर्ण रीति से मानव है। And even as our Savior on this earth, the Father had bestowed the authority of life upon him. और भले ही वह इस जगत में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आए, लेकिन परमेश्वर का जो अधिकार है अभी भी परमेश्वर ने उसे दिया हुआ है। And it's amazing that what Jesus was doing in chapter 9, he gives them the authority to do it. और बहुत ही अद्भुत है कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह अध्याय 9 में कर रहे थे, वो बातें, वो अधिकार उन्होंने अध्याय 10 में अपने चेलों को दिया। We know that without the authority of Jesus, what happened in the book of Acts? हम देखते हैं कि बिना मसीह के अधिकार के क्या हुआ? क्या हुआ? The sons of Sceva, they tried to cast out demons. जो स्कीवा के जो पुत्र थे उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास किया। And the demons said, Jesus we know, Paul we know. और वे दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि पौलुस को हम जानते हैं, यीशु मसीह को हम जानते हैं, But who are you? पर तुम कौन हो? You don't belong to Jesus. तुम प्रभु यीशु मसीह के नहीं हो। You don't have the authority of Jesus upon you. तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह की दी हुई अधिकार नहीं है। And so they fell upon those sons of Sceva and gave them a nice beating. तो वो दुष्ट आत्माएं उन पुत्रों के ऊपर आ गई और उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया। So it should amaze us this morning, because these disciples are going to travel far and wide. और यह हमें आश्चर्यचकित करना चाहिए, क्योंकि अब ये इस अधिकार के साथ जो चेले हैं वह उस क्षेत्र में अपनी सेवाओं को देंगे। And wherever they travel, because Jesus said, the demons and the diseases were going to obey. और जहाँ पे भी वो यात्रा करेंगे वे उस अधिकार के साथ जाएंगे कि अब दुष्ट आत्माएं और जो बीमारियां हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करेगी। Because behind the command of Jesus is the very creative power and delivering power of Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के इस अधिकार के पीछे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसका अधिकार है। And also we need to see that how Jesus had this long-term plan with the disciples. और यह भी हमें देखना है कि उन चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह की एक लंबी योजना थी। Time and again he would send them out. बार बार वे उन्हें बाहर सेवा के लिए भेजते थे। And he would send them out with specific instructions. और वे चेलों को कुछ स्पष्ट आज्ञाओं के साथ भेजते थे। In our passage, he gave authority over unclean spirits and every disease and every affliction. आज के जो हिस्सा है उसमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और बीमारियों पे अधिकार के बारे में बताया गया है। This is because the kingdom has come. क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। And the people need to see the evidence of the power of the kingdom. और लोगों को उस राज्य के जो सामर्थ्य है उसको देखने की आवश्यकता है। And Jesus is giving them the authority to do all of these things. और प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को यह सब चमत्कार करने का अधिकार देते हैं। Now notice that it's not like on the first day that Jesus called Peter and John, he immediately gave them the authority and sent them out. और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही दिन पतरस और यूहन्ना को बुलाकर वो अधिकार देकर उन्हें बाहर नहीं भेज दिया। In Mark chapter 3 and verse 14, the Bible says he called them so that they might be with him and he might send them out to preach. मरकुस उसके अध्याय 3 उसके पद 14 में लिखा है कि उन्होंने उसको बुलाया ताकि वो उसके साथ रहे। वो उसके साथ
verse 14. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें. And so sometimes we miss that very important middle section of that verse. और कई बार हम इस पद के जो बीच का हिस्सा है उसे हम देखने में चूक जाते हैं. Being with Jesus is important. प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना आवश्यक है. Beholding his glory is important. उसके महिमा को देखना आवश्यक है. And seeing his power and being a keen observer of all that he's doing. और उसके सामर्थ्य को देखना और जो वह कुछ करता है उसको ध्यानपूर्वक देखकर सीखना बहुत आवश्यक है. And they would have the opportunity to hear his message. और उनके पास यह सौभाग्य है कि वो उसके शिक्षाओं को सुन सकते हैं. And see his conviction, see his responses. और उनके यीशु मसीह के हृदय को और उसके responses. और उसकी जो प्रतिक्रिया है उसे देख सकते हैं. So this is important even for our lives. और यह हमारे लिए भी आवश्यक है. Today we have people who think that in 6 months we can send out people here and there. आज लोग ऐसा सोचते हैं कि 6 महीने प्रशिक्षण देने के बाद हम लोगों को बाहर भेज सकते Today हैं. we have even people 3 months, 2 months we have taken some training and we have gone. और कभी-कभी लोग 2 महीने और 3 महीने की प्रशिक्षण के बाद सेवा में बाहर चले जाते हैं. Now it's not wrong to be part of a training. और प्रशिक्षण में भाग लेना गलत नहीं है. But beyond that training, more important is, have you been with Jesus? पर उस प्रशिक्षण से कहीं ऊपर यह आवश्यक है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं. Are you in awe of his love and his gospel? क्या आप उसके जो प्रेम है और उसके सुसमाचार से प्रभावित हुए हैं. Are you amazed at his truth and his glory? क्या आप उसके महिमा और उसके जो सच्चाई है उसके द्वारा आप प्रभावित हुए हैं. And so these disciples had already been for a while with Jesus. और ये जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले काफी समय से साथ में सेवकाई कर रहे And हैं. if the Son of God had not uttered his word and given his authority, they would fail miserably. और यदि यीशु मसीह अपने शब्दों को निकाल कर उन्हें ये अधिकार नहीं देते तो वो असफल हो जाते. And it's God who called them aside and God who did this for them. यह परमेश्वर है जिन्होंने उन्हें बाहर बुलाया और यह परमेश्वर है जिन्होंने उनको अधिकार दिया. Throughout the Bible, from the Old Testament, God is the one who calls his servants. पुराने नियम से ही हम यह देखते हैं कि यह परमेश्वर है जो अपने सेवकों को बुलाता है. He tells Jeremiah, before I formed you, I knew you. वह यर्मिया को कहता है कि तुम्हारे बनाने के पहले मैं तुम्हें जानता था. Paul says, when I was in my mother's womb, he called me. पौलुस कहता है कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तभी से परमेश्वर ने मुझे बुलाया. And he also humbles his servants, those whom he wants to send. और जिन्हें वह भेजना चाहता है वह उन्हें नम्र भी करता है. He doesn't want proud, self-exalting servants to represent him. वह घमंडी और स्वार्थी लोगों को नहीं चाहता कि वे प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करे. You know how he broke Isaiah in chapter 6? हम देखते हैं कि यशाया को अध्याय 6 में उसने किस रीति से नम्र किया. And Isaiah is turning to go out and he says, no, who will go for me? और यशाया जब मुड़ के वापस जाते रहता है तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लिए कौन जाएगा. Broken people healed by the gospel, they are the ones who can share that gospel. जो टूटे हुए लोग हैं जो सुसमाचार के द्वारा चंगाई को प्राप्त करते हैं वे सुसमाचार वे बाहर भेजे जाते हैं. And so this morning we should be amazed that Jesus gave his authority to these disciples. तो आज की सुबह हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए कि इन चेलों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिए. Whichever town, whichever village, whatever demons that were claiming that as their territory, they had to obey. किसी भी शहर या किसी भी गांव में जहां दुष्ट आत्माएं अपने अधिकार को बनाए हुए हैं वहां पर ये जाकर अपने अधिकार को प्रकट कर सकते Because हैं. the Son of God had given the word of God to them. क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उन्हें यह अधिकार दिया है.
And then, secondly, we see not only the delegation, but we see the identification of these 12. और ना केवल हम बुलाहट देखते हैं लेकिन हम पहचान को भी देखते हैं इन चेलों की। Verse 2 to verse 4, we have this list of disciples. पद 2 से पद 4 तक हम इन 12 प्रेरितों के नाम को देखते हैं। Sometimes we look at these lists, especially when we are expecting some child in the family. जब हम घर में एक बच्चे का इंतज़ार करते हैं तब हम इस सूची को देखते हैं। And we think that these lists will help us. That's the sole purpose of these lists. और जब हम इस सूची को देखेंगे तो हम किसी नाम का चुनाव कर पाएंगे। Andrew sounds like a good name if it's a boy. और अंद्रियास जो है वो एक अच्छा नाम है अगर लड़का हुआ तो। But there's something that Matthew wants to communicate to us. लेकिन कुछ और है जो मत्ती यहाँ पे हमें बतलाना चाह रहा है। In verse 12, he already calls them the apostles. पद 12 में वह पहले से ही उन्हें प्रेरित करके बुलाता है। What's going to happen in the future, he brings it here in the present and says, these are the apostles. जो अध्याय 12 में होगा उसके पहले ही वह यहाँ पे लिख के बताता है कि ये जो है वो प्रेरित हैं। They are the ones who are going to be sent out by Christ. ये जो प्रेरित हैं इन्हें यीशु मसीह के द्वारा बाहर भेजा जाएगा। And the church is going to be built on the foundation of the prophets and the apostles. और इन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के आधार में जो कलीसिया है उसका निर्माण होगा। Now, in this list, we see that there are 3 groups. और इस सूची में हम 3 भाग को देखते हैं। And in each group, there are 4 names. और हर एक हिस्से में 4 नाम हैं। And how much does that make it? 4 3s are kids? और यह 4 गुणा 3 कितना होता है? 12, right? So there were 12 apostles. और जो पूरे जो चेले थे वे 12 थे। And always in the lists of these apostles, Simon Peter is first. और इन सूची में हमेशा जो शिमोन जो है जो पतरस कहलाता है उसका पहला नाम रहता है। And Judas Iscariot is last. और यहूदा इस्करियोती जो है उसका आखिरी नाम रहता है। And from the middle order, nobody goes to the top order. और जो बीच का हिस्सा है उससे कोई ऊपर के हिस्से में नहीं जाता। And in the top order, Simon and Andrew always are together. और जो पहला हिस्सा है उसमें पतरस और अंद्रियास वो सबसे पहले आते हैं। And James and John as brothers go together. और याकूब और यूहन्ना एक साथ आते हैं। And it reminds us how the grace of God usually flows in family members. और यह हमें दिखलाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह किस रीति से परिवार में कार्य करता है। Because family is close knit, and when we are excited about Jesus, the first person that we want to share is our family member. क्योंकि जो परिवार है वो एक दूसरे के निकट रहते हैं और जब हमें प्रभु यीशु मसीह मिले हैं तो हम उत्सुकता के साथ उनके साथ यह बात बांटते हैं। Now everybody knows Simon, who is called Peter. और हम सभी जो शिमोन जो पतरस कहलाता है उसे हम जानते हैं। This name Peter was given by Jesus. यह जो नाम है पतरस वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। It's the key role Peter is going to play in the beginning stages of the church. और जो पतरस है वह बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगा चर्च के प्रारंभ होने में। But as we do searches in the Bible, there is nothing like greatly impressive about these apostles. लेकिन जब हम पूरे बाइबल को देखेंगे तो इन चेलों के बारे में कुछ बहुत ही विशेष नहीं है। In themselves, there is nothing greatly impressive. उनमें खुद में कुछ ऐसा प्रभावशाली या आकर्षक नहीं है। Most of these were Galileans. बहुत से जो चेले थे वो गलीली थे। Who ever thought that something great is going to come from Galilee? कौन ऐसा सोचेगा कि गलील से कुछ अच्छा बाहर निकल कर आएगा। And these are a group of fishermen and various backgrounds put together. और ये मछुआरों का झुंड है और बहुत ही अलग अलग जो उनके कार्य है उसका झुंड है। In the book of Acts, people said these unlearned men have come to us. प्रेरितों में हम देखते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं वे हमारे पास आए हैं। I'm guessing their dressing sense was also not like the Romans or really
top class. और मैं कल्पना करता हूँ कि उनकी जो पहनने की जो कपड़े पहनने की जो ढंग है वो भी उतना आकर्षक नहीं होगा. And then one other interesting thing is in the middle order we see Matthew, and he calls himself the tax collector. और एक और आश्चर्य अद्भुत बात हम देखते हैं कि वहाँ पर मत्ती के बारे में बात किया गया और उसने अपने बारे में लिखा है कि वह महसूल लेने वाला है. He always felt that he doesn't belong in this list. और वह हमेशा इस बात को स्मरण करता है कि वह इस सूची में शामिल होने के योग्य नहीं. I am that unworthy tax collector here. मैं वह अयोग्य महसूल लेने वाला हूँ. And it's good to always remember where we were and where Christ has brought us. और यह हमेशा हमारे लिए अच्छा है स्मरण करना कि हम क्या थे और आज हम मसीह में क्या है. And the apostle Paul also, time and again in his epistles, he says, I am the chief of sinners. और बार बार जो पौलुस है वह कहता है कि मैं पापी हूँ. And I'm not worthy, and Christ called me and is using me. और मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन मसीह ने मुझे बुलाया है और मसीह मेरा इस्तेमाल कर रहा है. And also in this list, in verse 4, we have Simon the Zealot. और पद 4 में हम शिमोन कनानी को भी देखते हैं. It doesn't mean he belongs from Canaan as a pagan. इसका अर्थ यह नहीं कि वो जो अन्य जाति है जो कनान है वहाँ से वहाँ का है. But this Canaan is a group that was very zealous for the traditions and the politics of Israel. पर ये जो कनानी लोग थे वो राजनीति के में बहुत ही रुचि रखते थे. He was probably part of some secret underground group before Jesus called him. वे बहुत ही गुप्त कुछ एक ग्रुप होगा उसका वह हिस्सा होगा. And always plannings were going on how to overthrow the Romans. और हमेशा ये जो ग्रुप है वह योजना बनाता था कि किस रीति से हम जो रोमी शासक है उसे हम बाहर निकाल सकें. Jesus calls him and says, I have a greater purpose for you. और यीशु मसीह शिमोन को बुलाता है और कहता कि तेरे लिए एक बड़ी योजना है. And imagine Jesus introducing him to the rest of the gang. और कल्पना करें कि यीशु मसीह बाकी चेलों से शिमोन का परिचय कराता है. And he has to shake hands with Matthew, the tax collector, who used to work for the Romans. और जो मत्ती है जो रोमी सरकार के लिए काम करता था उसके साथ शिमोन हाथ मिला रहा है. So naturalistically speaking, this would have been a disaster. और बहुत ही स्वाभाविक रूप से यदि हम सोचे तो बहुत ही खतरनाक यह जो मिलन है. No IAS people in your list, Jesus? आपके सूची में कोई IAS नहीं है यीशु? Nobody from IIT Kharagpur? कोई IIT खड़गपुर से नहीं है? No amazingly talented world traveler, world renowned Nobel Prize winner? कोई भी आपके जो सूची में बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही शिक्षित व्यक्ति नहीं है? This was an unimpressive group. ये बहुत ही एक आकर्षित ग्रुप नहीं था. They in the Gospels we see that they lacked a lot of spiritual understanding. हम सुसमाचार में देखते हैं कि बहुत सी आत्मिक बातों में उनके जीवन में कमी पाई जाती थी. Once Jesus was saying that be careful of the leaven of the Pharisees. एक बार यीशु मसीह कहते हैं कि जो फरीसी है उनसे सावधान रहो. And they thought that we've not packed enough bread in the boat. और उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने कि हमने पर्याप्त मात्रा में भोजन एकत्रित नहीं करके रखा. They lacked humility also. उनके पास नम्रता भी नहीं थी. They were whispering something behind as Jesus was walking once. वे पीछे जब यीशु मसीह आगे चल रहे थे वो पीछे कुछ फुसफुसा रहे थे. And their discussion was who is greatest in the kingdom of heaven. और वे बात कर रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में कौन महान है. And John and James' mother, she came and she was trying to do advance booking of who will be at the right hand of Jesus and left hand of Jesus. और याकूब और यूहन्ना की जो माँ है वह पहले से बुकिंग कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं हाथ में कौन बैठेगा. And all the other disciples got upset with that. और इस बात को लेके बाकी जो चेले हैं वे बहुत नाराज हो गए थे. Because somewhere in their heart also they wanted some kind of preeminence. क्योंकि कहीं ना कहीं वे भी
इस रीति के अधिकार की कामना कर रहे थे। And not only that, but Jesus kept rebuking them, "Oh, you of little faith." और न केवल यह लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार उन्हें उनके विश्वास की कमी के लिए डांटते थे। Jesus was coming down from the Mount of Transfiguration. प्रभु यीशु मसीह उस परिवर्तन के जो पर्वत है उससे जब नीचे उतरते हैं, And they couldn't help this man with a demon-possessed son. और वे उस जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति का पुत्र था उसकी सहायता नहीं कर पा रहे थे। Jesus said, "How long I have to be with you? Oh, you of little faith." और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कितने वक्त तक और रहूं, तुम जो विश्वास में कम हो। And then we know that on the night that Jesus was betrayed, all of them ran away. और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए, सभी चेले भाग गए। They were a massive failure in some sense. वे बहुत ही बड़े असफलता थे एक रीति से। But what is amazing is Jesus stuck with them. लेकिन बहुत अद्भुत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बने रहे। And the amazing patience and the faithfulness of Jesus we see. और प्रभु यीशु मसीह की का सब्र और विश्वास योग्यता चेलों के प्रति हम देखते हैं। Not only stuck with them, he was preparing them for world mission. और ना केवल प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बने हुए थे, लेकिन वे उनको तैयार कर रहे थे उस जगत के जो मिशन है उसके लिए। And one day, by the Spirit of Christ being poured out upon them, out of weakness, they would be made strong. और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उन पर आएगी, तब उनके कमजोरी में वे अपनी सामर्थ को पाएंगे। God is in the business of using really nobodies of this world. और प्रभु यीशु मसीह इस कार्य में है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको अपने राज्य के लिए प्रयोग करते हैं, So that the power in those earthen vessels will be of God's alone. और जो उस मिट्टी के बर्तन में जो सामर्थ है वह केवल प्रभु परमेश्वर की सामर्थ ही रहेगी, And the glory from their lives will be God's alone. और जो उनके जीवन से महिमा निकलेगी वह केवल परमेश्वर की महिमा निकलेगी। And so this identification is a very unimpressive identification. और यह जो पहचान है वह एक बहुत ही अनाकर्षित पहचान है। And let's just look a little bit today at the instructions that Jesus gave. और जो आज्ञा परमेश्वर यीशु मसीह इन चेलों को देते हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। In verse 5 we see the 12 Jesus sent out instructing them, "Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel and proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand." पद 5 और 6 में हम देखते हैं कि इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। And so Jesus as Lord, he has specific instructions for them. और प्रभु यीशु मसीह जो एक प्रभु है, उनके चेलों के लिए बहुत स्पष्ट आज्ञाओं को देता है। They are not to hurriedly make up their own plans. उनको जल्दबाजी में खुद की कुछ योजनाओं को नहीं बनाना है। If you have teenagers in the house, यदि आपके घर में युवा बच्चे हैं, they are very eager to prove something. वे बहुत ही उत्सुक रहते हैं कुछ साबित करने के लिए। And suppose we say, no, leave it, we'll get some professional help. और यदि हम कहते हैं कि इसको छोड़ दो, हम किसी प्रशिक्षित को बुलाएंगे। No, they want to prove a point that they can do it. लेकिन वे यह साबित करना चाहते कि हम इस काम को कर सकते हैं। We are not kids anymore. Now I am almost an adult. कि अब हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। But these disciples, they were not to get excited in themselves. पर ये जो चेले हैं उन्हें खुद में उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। Jesus tells them the scope where to go. और प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पष्ट रीति से बताता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। Not to the Gentiles, not to the Samaritans. कि अन्य जातियों के पास नहीं जाना है, सामरियों के पास नहीं जाना है। It's not that Jesus didn't love other people. ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बाकी लोगों से प्रेम नहीं करते। He himself walked through Samaria to go to the woman at the well. वे खुद सामरी जो नगर है उससे गुजरते हुए उस
सामरी स्त्री से मिले थे And he stayed at that village to tell the good news to those people. और उस गांव में रुक कर उन्होंने सुसमाचार को सुनाया था। It doesn't mean that he doesn't love the people of the world. ऐसा नहीं है कि वे अन्य जाति जो बाकी के जगत के लोग हैं उनसे वह प्रेम नहीं करते। Because in John 3 he tells Nicodemus that whoever believes from any corner of the world he will be saved. और निकोदेमुस को यूहन्ना 3 में वह कहते हैं कि इस जगत में कोई भी जो विश्वास करेगा वह उद्धार को पाएगा। But right now the training was limited. लेकिन अभी के समय में जो प्रशिक्षण है वह सीमित है। Right now the situation was not right. अभी के समय में जो परिस्थिति है वह सही नहीं है। Already the Jews were calling Jesus Beelzebub. पहले ही जो यहूदी हैं वो यीशु मसीह को बेल्ज़ेबूब करके बुला रहे हैं। And now why do we want to go and add extra attention from outside to ourselves? तो फिर क्यों हम और अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें? And so being sent out by Jesus involves paying heed to the instructions of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के इस चेलों को भेजे जाने के पीछे योजना यह है कि जो आज्ञा मैंने दी है उसका ही केवल तुम पालन करो। And notice in verse 6 Jesus says go to the lost sheep of the house of Israel. और पद 6 में हम देखते हैं कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। In chapter 9 they are beaten and oppressed sheep. पद 9 में वह मारी हुई और कूटी हुई भेड़ें हैं। And the religious leaders are taking them on a totally different way. और जो धार्मिक जो लोग हैं वे उन्हें किसी और ही मार्ग में लेके जाना चाहते हैं। But here he calls them the lost sheep of the house of Israel. पर यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ें। So in the redemptive plan of God we are moving forward into the New Testament. और जो उद्धार की योजना है हम उसमें नए नियम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। In Romans 2 Paul says not everybody who is circumcised is truly heart circumcised. रोमियो 2 में पौलुस कहता है कि वे हर एक जिन्होंने खतना प्राप्त किया है वे ज़रूरी नहीं कि उन्होंने मन में भी खतना को पाया है। And so here we see that just being born in a Christian home doesn't mean you are found already. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि आप एक मसीही घराने में हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि आप मसीही हैं। There is a lostness in Adam. और आदम में एक बहका हुआ एक घुमा हुआ हम व्यक्ति को पाते हैं। Where we are like sheep who are lost and wandering. हम एक ऐसी भेड़ हैं जो खोए हुए हैं और भटक रहे हैं। And we are coming to our own conclusions. और हम अपने ही निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं। And we are in great danger being lost sheep. और हम बहुत ही खतरे में हैं क्योंकि हम एक खोई हुई भेड़ हैं। And it's very humbling to receive these words as a Jew, as a nominal Christian. और इस वचन को प्राप्त करना चाहे एक यहूदी के लिए या एक साधारण मसीह के लिए बहुत ही एक नम्रता का कारण है। I thought I am the best sheep. मैं यह सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी भेड़ हूँ। And I am going to tell all the goats where to go. और मैं हर एक बकरियों को ये बोलूँगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। But it starts with realizing you are a lost sheep. पर इसका जो प्रारंभ है यह स्मरण करने से होता है कि मैं खोई हुई भेड़ हूँ। I am helpless. I cannot save myself. कि मैं असहाय हूँ और मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। And it begins with somebody coming and telling you the good news of the kingdom. और यह प्रारंभ होता है कि कोई बाहर से आपके पास आए और आपको सुसमाचार सुनाए। And that's what we see in verse 7. And proclaim to as you go, saying the kingdom of heaven is at hand. और पद 7 में हम देखते हैं कि चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Notice before healing, before raising, before cleansing, there is proclaiming. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि चंगा करने या फिर शुद्ध करने या दुष्ट आत्माओं को निकालने के पहले यहाँ पे स्वर्ग के राज्य की बात की गई है। The delivering ministry was evidence that the kingdom had come. जो प्रचार का जो योजना था उसका
जो मुख्य भाग यह था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। And the whole subject, the whole theme was given by the Lord. और यीशु मसीह के द्वारा उसका जो मुख्य संदेश है वह दिया गया था। The Jews were greatly expecting the kingdom of God. जो यहूदी लोग हैं वे बहुत ही उत्सुकता के साथ राज्य का इंतजार कर रहे थे When will the root of Jesse come? When will the son of David come? कि कब वह जस्सी का पुत्र आएगा और कब वह या दाऊद का पुत्र आएगा। But the political oppression and the poverty and being oppressed, that made them long for only a political king. लेकिन वह जो राजनीतिक जो प्रताड़ना है और जो है जो सताव उनके ऊपर हो रहा था वे केवल एक सांसारिक स्वतंत्रता की कामना कर रहे थे। And so these disciples have to go with not a people pleasing message but a faithful message from heaven. तो इसलिए उन चेलों को एक लोगों को खुश करने वाला संदेश नहीं, लेकिन जो मसीह के द्वारा जो सत्य का जो संदेश है उसके साथ उन्हें भेजा गया। They couldn't add their own masala. वे अपने खुद के विचारों को वहाँ पे नहीं जोड़ सकते That थे soon Jesus is going to defeat the Romans. कि बहुत ही जल्द यीशु मसीह उन रोमियों को हराएंगे All the treasury is going to be opened up. और जो जितना खजाना है वो सब हमारे लिए खुल जाएगा And for everybody 10 lakh rupees in the account. और हर एक के जो खाता है उसमें 10 लाख रुपए आएगा। No, as tempting as that is, they had to be faithful to what Jesus gave the message. और भले ही है कितना भी आकर्षित हो, लेकिन इन चेलों को जो मसीह ने संदेश दिया है उसमें बने रहना आवश्यक है। The kingdom of heaven, the rule of heaven has come. जो स्वर्ग का राज्य है, जो स्वर्ग का शासन है वह अब आ गया है And God has sent his son, the Messiah. और परमेश्वर ने अपने पुत्र जो मसीहा है उसे भेजा है And he's gathering his people into the kingdom. और वह अपने लोगों को अपने राज्य में बुला रहा है And he is the one who has come to save us from our sins. और वह एक ऐसा मसीह है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। And right now the kingdom is spiritual and unseen. और वर्तमान में जो यह राज्य है वह आत्मिक है और जो ना दिखने वाला राज्य है, But true righteousness and joy and peace is there in that kingdom. पर अभी भी इस राज्य में वह सच्ची धार्मिकता और शांति और वह प्रेम है। But one day the fullness is coming. पर एक दिन यह इस राज्य अपने परिपूर्णता में आएगा। That's not such a attractive message. और यह एक आकर्षक संदेश नहीं है, But still they had to proclaim that message. पर फिर भी यह इस संदेश को उन चेलों को लोगों तक पहुंचाना है। And this morning this is the same message coming to your ears. आज की सुबह यही संदेश आपके कानों में भी पहुंच रहा है। That is only one king given by God. केवल एक राजा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है And he was set from long ages ago at the right hand of the Father. और वह इस बहुत समय पहले से हमारे लिए दिया गया था। And he's the one who has accomplished that redemption. और यह केवल वही है जो इस उद्धार को हमारे लिए पाएगा। And he is the one who is risen and is seated at the right hand. और यह एक ऐसा मसीहा है जो पुनः जीवित हुआ है और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। And this morning, if you sense that you are outside the kingdom, और यदि आज की सुबह आज इस बात को आप स्मरण करते हैं कि आप इस राज्य के बाहर हैं, the gospel preaching opens the door of that kingdom. सुसमाचार जो है इस दरवाजे को आपके लिए खोलता है And it invites you to come in. और आपका स्वागत करता है कि आप अंदर आए, Come in to this kingdom that will never fade away. कि एक ऐसे राज्य में तुम प्रवेश करो जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। This is the kingdom of the beloved son. यह एक प्रिय पुत्र का राज्य है And this son will reign with his people. और यह जो पुत्र है वह उसके लोगों के साथ राज्य करेगा। The kingdom of this world which is outside is going to perish. और यह जो इस संसार का जो राज्य है जो कि बाहर है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। And it's going to be destroyed. यह
तबाह हो जाएगा। And so come to Christ this morning. तो इसलिए आज की सुबह आप मसीह के पास आएं। He's the only king who can give that righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. केवल वही है जो आपको सच्ची धार्मिकता और शांति और आनंद दे सकता है। And this is the message as a church that we are called to uphold. और यह एक ऐसा संदेश है जो मसीह बोलता है, हमें कहता है कि हम इस संदेश को थामे रहें। And this is the great news that we are called to share. और यह एक ऐसा सुसमाचार है जो हमें बुलाया गया है कि हम लोगों के साथ इसे बांटे। And we have to tell them the bad news and the good news. और हमें लोगों को बुरा समाचार भी सुनाना है और सुसमाचार भी सुनाना है। That there is a kingdom of darkness and probably you are part of it. कि एक अंधकार का राज्य है और संभव है कि आप उसका हिस्सा हो। But Christ comes to bring you into his own kingdom. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आता है और आपको उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाता है। And as we are going to see in chapter 10, there is even opposition to this message. और इस अध्याय में हम आगे भी देखेंगे कि इस सुसमाचार का विरोध भी हुआ है। But Christ is with his people in that opposition. लेकिन इस विरोध में भी प्रभु यीशु मसीह उसके लोगों के साथ है। And that we are called to not be ashamed of this message. और हमें बुलाया गया कि हम इस जो संदेश है उसको पाकर शर्मसार नहीं हों। May God help us to be a faithful church. परमेश्वर हमारा सहायता करे कि हम एक विश्वास योग्य कलीसिया बने रहें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इस बुलाहट के लिए जो आपने सर्वप्रथम अपने चेलों को दिया और बाद में आपने हमें भी दिया है। और आपने हमें उन आज्ञाओं के साथ दिया है कि हम अपने विचारों को और अपने मन की बातों को ना बोले, लेकिन उस राज्य का प्रचार करें जो केवल स्वर्ग का राज्य है, जो आपके प्रिय पुत्र ने हम सभी के लिए लेकर आया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर पिता उस बलिदान के लिए जो आपके पुत्र के द्वारा हमारे लिए दिया गया। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम उस राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, लेकिन केवल यह आपके पुत्र का संपूर्ण कार्य है और उसका बलिदान है और उसका पुनरुत्थान है, जिसके द्वारा हम अब उस राज्य के सदस्य कहलाए जाते हैं, उस राज्य के भागी कहलाए जाते हैं। और होने दीजिए कि हम संपूर्ण विश्वास के साथ और सामर्थ के साथ जो पवित्र आत्मा हमें देता है, यह संदेश जो आपने हमें दिया है, यह संदेश हम हमारे प्रियजनों को और हमारे पड़ोसियों को बांटने वाले हो सके, ताकि वे भेड़ें जो आपने चुनी हुई है वह आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते और हम सभी के मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हमें प्रोत्साहित कर पिता परमेश्वर कि हम एक विश्वास योग्य कलीसिया बने रहे और आपके वचन का प्रचार प्रसार आपके वचन के अनुसार करने वाले हो सके। इस संदेश के लिए जो आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।